Hello students, कैसे हैं बच्चे आप लोग? Today we are going to start the third chapter of First Flight, that is 2 stories about flying. So this chapter contains 2 stories. In this chapter you will read 2 stories. The first story is His First Flight. What is His First Flight by Lalo Flaherty. And the second story is Black Aeroplane by Frederick Forsyth. So there are 2 stories, and these 2 stories are about the courage and tireless efforts in which the writers have explored the fact that courage and strong will make us able to do all the desired thing, and one can do any impossible thing with his determination and courage, and this is the only way to come out from the dangerous situation. In these stories, the protagonists have some problem and they lose some confidence, and later on through their confidence they overcome that shortcoming of losing their confidence, and finally they win and they come out from the dangerous situation. So first of all we will start with the first story, that is His First Flight. Which chapter? His First Flight. So His First Flight is the story of a bird. Which bird? Seagull. Seagull that lives, or you can see this bird near the sea, or you can say at the sea coast, nearby the sea area. So that bird, seagull, lives there with its family. Here young seagull living with his family, and in his family mother, father, 2 brothers and 1 sister was living with him. So this is the story of a young seagull who lives with his family, with mother, father, 2 brothers and a sister. Young seagull was very timid and coward. It means वो बहुत डरपोक था, हर चीज से बहुत डरता था. And you know that the main trait of a bird is flying. हर पक्षी की विशेषता होती है कि वो उड़ता है, और उड़ान भरना उसकी बेसिक क्वालिटी होती है. जैसे आपने देखा होगा जब आप बच्चे छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपकी उंगलियां पकड़ के उन्होंने आपको चलना सिखाया, फिर धीरे धीरे आप चलना सीखे, दौड़ना सीखे और आप में कॉन्फिडेंस आ गया. इसी तरह से जो यंग शीगुल है उसके पेरेंट्स भी उसे उड़ना सिखाना चाहते थे. उसकी एक ट्रेनिंग है उसको. जैसे आपके छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपको चलना सिखाते थे. यू हैव लर्न हाउ टू वॉक बाय जस्ट होल्डिंग द फिंगर ऑफ योर पेरेंट्स, and gradually you learn independently how to walk. In the same way, शीगुल के भी पेरेंट्स चाहते थे कि वो उड़ना सीखे. उसके ब्रदर सिस्टर्स वो उड़ना सीख गए, वो उनकी ट्रेनिंग हो रही है, वो सीख रहे हैं. बट शीगुल कैन नॉट हैव करेज टू लर्न फ्लाइंग. ही ऑलवेज फील, उसको हमेशा लगता था कि वो उड़ना सीखेगा, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट टेक अ प्लंज. उसे डाइव लगानी पड़ेगी, कूदना पड़ेगा उस ऊंची क्लिफ, जो ऊंची चट्टान है उससे नीचे की तरफ. और नीचे क्या था? चट्टान के नीचे समुद्र. उसे लगता था वो समुद्र में गिर के मर जाएगा. उसे उस हाइट से he was scared of that height, and that's why he cannot have courage to fly. And that's why whenever his parents asked him to try to fly, he refused to do. Why? Because he was timid and coward. क्योंकि वो डरपोक था, वो कायल था, एंड हमेशा वो उड़ने से डरता था. और उसके ब्रदर एंड सिस्टर दे वर बीइंग ट्रेन्ड बाय हिज पेरेंट्स. जबकि उसके ब्रदर सिस्टर ट्रेंड हो रहे थे अपने पेरेंट्स के द्वारा, वो उड़ना सीख रहे थे. ही वॉज स्केयर्ड. किससे डरता था? मैंने अभी बताया दैट ही वॉज स्केयर्ड ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन. जो नीचे क्लिफ, उस चट्टान के नीचे जो ऊंची पहाड़ था, चट्टान थी, उस लेज पे से वो डाइव करेगा नीचे, उसे लगता था वो गिर जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा, मर जाएगा. जबकि उसे अपने पंखों पर भरोसा ही नहीं था. He was not relying upon his wings, that his wings are going to support him and he is going to fly. But
That's why he always refused to fly. Even his brother and sisters' wings were shorter, but they could flew. जबकि उसके भाई बहन उससे छोटे थे, उनके पंख भी उससे छोटे थे, लेकिन फिर भी वो उड़ने की कोशिश करते थे क्योंकि वो शीगुल की तरह डरपोक नहीं थे. He was threatened by his parents. उसके पेरेंट्स उसे थ्रेट देते थे, धमकी देते थे, वार्न करते थे. आपने देखा होगा जब आप पढ़ाई नहीं करते हो या कोई बात नहीं मानते हो तो पेरेंट्स यूज टू थ्रेट यू. कैसे धमकी देते हैं? वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपको बुक्स नहीं दिलाएंगे, वो आपको चीजें नहीं दिलाएंगे, वो आपको खाने को नहीं देंगे. सो इट मीन्स सच टाइप्स ऑफ थ्रेट इज गिवन बाय पेरेंट्स जस्ट फॉर योर वेलफेयर because they love you so dearly. In the same way, he was also threatened by his parents that they are going to leave him alone and they will flew away from there. वो उसे क्या धमकी देते थे कि अगर वो उड़ने की कोशिश नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा, तो उसे वहीं अकेला छोड़कर वहां से चले जाएंगे. Even his brother and sister used to also taunt him as a coward. उसको टॉन्ट यानी कि उसमें टॉन्टिंग करना, उस पर कमेंट करना, उसे क्या कहते थे? कॉवर्ड, टिमिड कहते थे, कायर कहते थे कि वो बहुत डरपोक है, वो सिचुएशन फेस करना नहीं जानता है. ओके, सो यू अंडरस्टूड दिस मच. सो जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कॉपी इट. इसके आप स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों. ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन राइट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स. So, after clearing your doubts, let's come to the next. I have already told you, he was getting threat from his parents' side that if he will not try to fly, definitely he is going to be left on that ledge and they will move away from there. So the same happened, that continuously they were threatening, but his parents' threat didn't work. यानी कि उसके पेरेंट्स उसको बार बार थ्रेट दे रहे थे यंग शीगुल को दैट ही मस्ट ट्राई टू फ्लाई, मगर उनकी थ्रेट ने कोई वर्क नहीं किया एंड ही डिडंट ट्राई टू फ्लाई. सो दैट्स व्हाई शीगुल वाज लेफ्ट अलोन ऑन द लेज. अब उसको लेज पे अकेला छोड़ के उसके सिबलिंग्स यू नो, भाई बहन, उसके भाई बहन, उसके पेरेंट्स वहां से चले गए. एंड आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे बीत गए उसके पेरेंट्स को, उसके सिबलिंग्स को वहां गए हुए, एंड ही वॉज फीलिंग हंग्री डेफिनेटली, एंड ही वॉज ऑलमोस्ट यू कैन से लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ. ही वॉज अबाउट टू डाई विथ हंगर, बट nobody came near to him. And now beta, this is very important. Sometimes our parents become strict, क्योंकि पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है. क्यों होना पड़ता है? ताकि बच्चे अच्छी बातों को सीख सके, उनकी बातों को मान सके. अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स का मोटिव क्या था कि वो उसको फ्लाई करना सिखाना चाहते थे, उड़ना सिखाना चाहते थे, सो दैट ही कैन बी इंडिपेंडेंट. क्योंकि पूरी जिंदगी तो पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहेंगे. ऐसे ही हमारे पेरेंट्स भी हमें कहते हैं पढ़ लो, जब हम नहीं पढ़ते, उनकी बात नहीं मानते तो वो हमें डांटते हैं. तो यहाँ पर भी उसके पेरेंट्स उसे क्या चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट बने. और वो इंडिपेंडेंट कब तक नहीं बन सकता? जब तक वो उड़ना नहीं सीखेगा. क्योंकि जब वो उड़ना सीखेगा, अपने लिए अपना फूड सर्च करना सीखेगा, हाउ ही कैन डाई एंड टेक हिज फूड, वो अपने लिए मछली पकड़ सके, अपना फूड अरेंज कर सके. सो दैट्स व्हाई दे बिकम स्ट्रिक्ट. एंड इवन आफ्टर 24 आवर्स नोबडी रिटर्न टू हिम. उसके पास कोई नहीं आया. He observed that his parents and his siblings were flying. अभी उसके पेरेंट्स जो है उसके सिबलिंग्स को उड़ना सिखा रहे हैं, डाइव करना सिखा रहे हैं, स्किम करना. इट मीन्स दे वर जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन देमसेल्फ इन एयर. आपने देखा होगा पक्षी क्या है, हवा में लहराते हैं, उल्टे सीधे होते हैं, उसमें वेव्स में मूव करते हैं. सो दीज स्किल्स वर बीइंग ट्रांसफर्ड, or you can say they were just trying to inculcate these qualities in the other shiguls. Other shigul कि जो उसके और बच्चे थे उन पेरेंट्स के. तो यंग शिगुल है and he was having 2 brothers and 1 sister also. तो उनके पेरेंट्स उनको भी ट्रेन कर रहे हैं how to dive, how to catch fish. So he was observing कि उसके पेरेंट्स कैसे उसके भाई बहन को ट्रेन कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं.
and finally when they all enjoyed, they all shifted on the opposite cliff. जो उसके सामने वाली चट्टान थी उस पे वो लोग जाकर शिफ्ट हो गए, उस पे रेस्ट करने लगे। उसके जो दोनों भाई बहन हैं वो उसके फादर के पास जाके लेट गए। बट आपने देखा होगा कि मदर के मन में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो यहाँ पे भी जो मदर शिगुल है, शी वॉज ऑल्सो हैविंग सम आइडिया इन हर माइंड। उसके भी दिमाग में कुछ आइडिया आया, और वो आइडिया क्या था? शी जस्ट वेंट ऑन द साइड, यू कैन से दैट लेज, जो साइड में एक लेज थी वो थोड़ा हम थी, हम यानी कि वो थोड़ा पंप आउट था, यानी कि उठा हुआ जो भाग था लेज का, उस पे जाके बैठ गई ताकि उसे यंग शिगुल क्लोजली ऑब्जर्व कर सके। एंड देयर शी स्टार्ट स्क्रैपिंग हर बीक, वहां पे अपनी बीक को शार्प करना, स्क्रैप कहते हैं रगड़ना, और उसे शार्प करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम नाइफ वगैरह रगड़ के शार्प करते हैं ना, कोई चीज नहीं कट रही होती है, तो ये शिगुल्स क्या है, अपनी बीक को स्क्रैप करके रगड़ के शार्प करते हैं। और उसके पास एक क्या था, शी वॉज ऑल्सो ऑब्जर्विंग हर यंग शिगुल, वो अपने यंग शिगुल को देख रही है। और यंग शिगुल ने भी क्या किया, ही जस्ट केम एट द ब्रिंक ऑफ दैट लेज, वो लेज के बिल्कुल किनारे पे आ गया और अपने वन लेग को अंदर करके, आपने देखा कई बार पक्षी क्या करते हैं, अपने एक पैर को अंदर ले लेते हैं और एक पैर पे स्टैंड करते हैं। एंड ही वॉज प्रिटेंडिंग टू स्लीप, वो सोने का बहाना करने लगा। बट ही वॉज ऑल्सो ऑब्जर्विंग द एक्टिविटी ऑफ हिज मदर। नाउ व्हाट हिज मदर डिड, हिज मदर स्क्रैप्ड its beak and then take a piece of fish and trying to tear it। यानी वो लोग फिश ऐसे ही तो पूरा गला नहीं कर जाएंगे, उसे क्या करेंगे, उसको ऐसे ही सैलो नहीं करेंगे, दे आर गोइंग टू टीयर इट। तो उस अपनी शार्प बीक से उसको टेयर किया। नाउ द साइट ऑफ दैट फिश, द साइट ऑफ दैट फिश, इट मीन्स फिश इज व्हाट, इट्स फूड, वो उसका खाना है। दैट हैज ऑलमोस्ट मैडन द यंग शिगुल, उसने जो है यंग शिगुल को ऑलमोस्ट पागल कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब आप बहुत भूखे हो, आप बहुत हंग्री हो और आपके सामने खाना आ जाए, सामने कोई दूसरा खाना खा रहा हो, तो यू ऑलवेज फील कि बस एनी हाउ यू गेट दैट फूड, किसी तरह से वो खाना आपको मिल जाए। द सेम हैपेंड विथ हिम ऑल्सो। क्या हुआ? एज ही सॉ द साइट ऑफ दैट फूड और यू कैन से फिश, ही वॉज ऑलमोस्ट मेडन। सो नाउ take a screenshot of this. Have a screenshot. Have you taken the screenshot? Let's continue further. So as he was just watching his mother, that she was just tearing that fish, he was having just water in his mouth. His mouth was filled with water and he was just completely maddened and wanted to have some food and wanted to eat that fish. Then he start begging for food and start calling his mother. उसने अपनी मदर से भोजन मांगना, यानी कि she was having that fish and that's why he start begging for that fish. He start begging for the food and calling his mother. His mother picked up that fish and flying across to him with it. इट मीन्स उसकी मदर ने उस फिश को अपने मुंह में दबाया और उसके चारों तरफ उसे लेकर उड़ने लगी। इज दिस क्लियर? ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू कम नियर टू हिज मदर, वो अपनी मदर के पास जाने की कोशिश कर रहा था। नाउ बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ दिस वॉज, you can say an effort from his mother's side where she was trying to provoke him that so that he can understand about his strength, about his qualities, and he was trying to make him fly. She was trying to make him fly. वो कोशिश कर रही थी कि वो भी थोड़ा एफर्ट करे और वो उड़ सके। इसीलिए वो जस्ट ऐसा नहीं कि उसके पास जाकर वो फिश ऑफर कर दी, नो, वो उस फिश के साथ वहां पर उन्होंने उसकी चारों तरफ उड़ना शुरू कर दिया। एंड व्हाट ही मेड the effort, he was just trying to go nearer to his mother, but his mother halted. उसकी मदर एक जगह रुक गई। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सपोज लाइक ये एक क्लिफ है, चट्टान है, ठीक है, नीचे ये आपका ओशियन है, ये एक लेज बताया मैंने आपको, यहाँ पर वो शिगुल है, ठीक है। अब ये शिगुल यहाँ पे बिल्कुल किनारे तक आया,
इसकी मदर पहले यहाँ फ्लाइट ले रही है एंड देन फाइनली जो मदर है उसने यहाँ आकर हॉल्ट कर दिया. नाउ मदर के मुंह में क्या है? वो फिश है. शी जस्ट स्टॉप्ड हियर. her wings were become motionless. She was just having a halt and Shigul was trying to reach. Now he trying to, as he was just scratching his feet, finally all of a sudden he take a dive. He dived here to catch this fish and when he take a dive he become too scared. क्योंकि नीचे क्या है? सी है और वो नीचे गिर गया. अब गिर गया तो ऑटोमेटिकली बर्ड है, उसके विंग्स ओपन हो गए. ह्यूमन बीइंग होते सीधे नीचे जाते, बट एज इट वाज अ बर्ड, सो एज ही टेकन अ डाइव, he was just dive for the fish. As he dived his wings automatically spread out. उसके जो wings थे वो खुल गए. He was quite terrorized, but वो जो उसका डर था वो 1 मिनट से भी कम रहा and immediately that was disappeared. Terror was just disappeared within a minute. His wings automatically spread outwards and he could feel the tips of his wings cutting through the air. उसे महसूस कर सकता था कि हवा बिल्कुल उसके पंखों के टिप्स के पास से निकल कर जा रही है, यानी कि he start flying. His parents and siblings came near to him. They were calling him to drop his legs to stand on the green sea. Now अब उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स उसके इस एफर्ट्स को देख के they were quite happy because his mother has made effort to remove his terror. किस डर को दूर करना चाहती थी? कि वो गिरेगा नहीं. उसे क्या लगता था कि वो सिर के बल गिरेगा, वो मर जाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा. उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था. और मैंने आपको स्टोरी का थीम ही बताया था. What was the theme? That we have, if we are having determination and courage, we can defeat any fear. हम किसी भी डर को हरा सकते हैं and we can move ahead in our life. The same happened. Now his family members were calling him and they asked him to drop his feet on the green sea. Green sea याद क्यों कहा बेटा? मॉसेस वगैरह होती है वहाँ, ग्रीन काई वगैरह जो जमी होती है उस पे. और जैसे ही उसने अपने फीट ड्रॉप किए, he was just start sinking into the sea. वो डूबने लगा. But he was again terrorized. बट उसका डर फिर खत्म हो गया क्योंकि जैसे ही उसका बेली पार्ट टच हुआ, पैर नीचे के बेली पार्ट टच हुआ, he start floating क्योंकि अगेन उसके विंग्स ने उसको सपोर्ट कर दिया. ओके, and then he was praised and circled by his family. He start, you can say he start gaining confidence that he can fly. अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा था कि वो उड़ सकता है. Now he start catching fish, taking his own food, managing himself, and he was very happy for this, and his family was also happy for this effort. So you understand the story. Sometimes we have to be strict with our children. हमें अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है. वहाँ पे भी उसकी मदर स्ट्रिक्ट हुई, बिल्कुल जाकर उसको ले जाकर दे तो नहीं दिया, उससे करवाया. और अभी मैं भी ऐसा ही करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस. अगर मैंने क्वेश्चंस दिए उसके आंसर तुरंत बता दिए, यू विल नॉट मेक योर एफर्ट. नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन, यू विल ऑल्सो मेक एफर्ट. You will write down the answer in the comment box. If any doubt will be there, you will ask me. Your doubts will be cleared immediately. So write down the question which I am giving and you will write the answer, and later on I will just provide you the notes of this chapter also. But before this, take a screenshot of this. Screenshot ले लिया बेटा आपने. Now make a notes of these of this chapter. Okay, now I am going to write some questions and you will answer it. So students, note down these questions, have a screenshot of this, and you are supposed to write the only key words of the answer. Okay, only one word answer you will write in the comment box, and very shortly you will get my notes also of this chapter. Till then,
revise the chapter, go through the notes properly, and keep on with reading and learning. And if there is any query, drop it in the comment box. Okay, thank you.